Welcome students. In this video I am going to start with description of another very important data type of Python, and that is tuples. Children, you have already studied about data type like string and list, and you know that string and list both are sequence type of data type. In the same sequence, we have another data type tuples, which again falls in the category of sequence data types, and what it is and how we perform operations over it, what all functions are there in tuples, everything will be discussed in this particular playlist, which is about Python tuples. Okay, so let us now introduce you to the basic concept of a tuple data type first. Okay, so talking about tuples, children, tuple is a standard data type of Python, just like list or string. Okay, now it is a collection of values of same or different data types enclosed within parentheses. आप जानते हैं कि स्ट्रिंग के केस में हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हुआ करते थे एंड दे यूज टू बी एनक्लोज विद इन कोट्स, राइट? Whatever kind of quote it is, single quote, double quote, triple single quote, triple double quote, whatever it is, we make use of uh, quotes to enclose a string. Okay, in the same way we make use of square brackets to enclose a list. So in case of tuples, a list of values is enclosed within parentheses. Okay, so this is the symbol within which is used to indicate a tuple, and again just like list, it can be a collection of same or different type of values. यानी कि आप एक टपल में अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी रख सकते हैं और सेम टाइप की वैल्यू भी रख सकते हैं. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये है आपकी एम्प्टी टपल. आप जानते हो जस्ट अ पेयर ऑफ कोट्स इज एम्प्टी स्ट्रिंग, just a pair of square brackets is empty list. In the same way, just a pair of parentheses is empty tuple, means a tuple not containing any of the elements. Okay, then next example is 1 2 3 within quotes, within parentheses, so it is a tuple of integers. Then here you can see tuple of numeric values, जिसमें integer भी है, float भी है. Okay, then you have tuple of characters in which all the elements are of string type. Then you have a tuple of mixed type of values. Here you can see that it is string, it is integer, this one is again string, this one is a float value. So any kind of value you can keep inside a tuple, but it has to be enclosed within parentheses. Now the most important thing about tuple and the characteristic that makes tuple different from the other sequences like string and list is that tuples are immutable. अब आप कहेंगे कि स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है. यस, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है, लेकिन एक स्ट्रिंग और टपल में अंतर ये है कि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअली स्ट्रिंग होते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC, तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं और तीनों स्ट्रिंग टाइप के ही हैं. यानी A भी स्ट्रिंग है, B भी स्ट्रिंग है और C भी स्ट्रिंग है. मान लीजिए इस स्ट्रिंग के अंदर इस स्ट्रिंग का कंटेंट होता है ABC 1 2 3, तो ये जो 1 है ये भी स्ट्रिंग होता, 2 भी स्ट्रिंग होता और 3 भी स्ट्रिंग होता. यानी कि आप समझे, बेसिकली द थिंग इज कि एक स्ट्रिंग के अंदर सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स भी स्ट्रिंग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो. लेकिन हमारी टपल्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो खाली स्ट्रिंग टाइप के नहीं होते. अगर मैंने मान लीजिए एक टपल लिखी है 10, देन XYZ, देन 3.14, तो इस टपल के अंदर आप देखिए ये एलिमेंट इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है. तो स्ट्रिंग और टपल में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि
स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन टपल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी अलाउड होते हैं। एंड सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट स्ट्रिंग और टपल दोनों इम्यूटेबल होते हैं, दे डू नॉट अलाउ चेंज इन प्लेस। नाउ टॉकिंग अबाउट लिस्ट, हाउ अ टपल इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। तो टपल लिस्ट से इस बात से डिफरेंट होती है कि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है, वेयर एज लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। ठीक है, तो आप टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देयर एंड देन चेंज कर सकते हैं। सो यू विल बी लर्निंग अबाउट लिस्ट इन द सीरीज ऑफ पाइथन लिस्ट विच इज़ कवर्ड इन अ सेपरेट प्लेलिस्ट. So if you want to study list, you can refer to it. Right now let us focus upon the concept of tuple. So like I told you, tuple is an immutable data type. तो इट डज़ नॉट अलाउ चेंज इन प्लेस, तो इसमें चेंज इन प्लेस नहीं होता। इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट टपल का चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप पूरी की पूरी टपल को दूसरी टपल से रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो टाइप एरर रेज होगा, लेकिन अगर आप पूरी टपल को एक नई टपल से रिप्लेस कर देंगे तो दैट इज़ अलाउड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक टपल ले रखी है और इसमें मैंने टी की 2 इंडेक्स पे डॉलर डाल एट द एम्परसेंट डालने की कोशिश की, तो इसने मुझे एरर दिया, टाइप एरर, सेइंग दैट टपल डज़ नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये एरर आपने स्ट्रिंग के केस में भी देखी थी, क्योंकि स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल है। ठीक है, लेकिन अभी आप इसी टी वेरिएबल को पूरी की पूरी नई टपल दे दीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी टपल सिंपली AS30 ये ऐसे प्रिंट हो जाएगी। तो यू हैव द लिबर्टी टू replace the old tuple with an entire new tuple, but you cannot change a particular element of the tuple. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने कहा कि टपल में आइटम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। बहुत तरीके के एलिमेंट्स उस टपल में हो सकते हैं, तो उस टपल में एक लिस्ट भी हो सकती है। सो अ टपल कैन कंटेन लिस्ट ऑल्सो, और लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप उस लिस्ट का इंटरनल एलिमेंट्स को तो बदल सकते हैं, लेकिन उस लिस्ट को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब इसका अंतर आप समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए, ये टपल थी, इस टपल के अंदर एक लिस्ट है, हमने T1 को 90 किया, यानी ये 40 की जगह मैं 90 लाने की कोशिश की, तो उसने मुझे एरर दे दी। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, T2 यानी कि ये इनर लिस्ट, इसकी 0 इंडेक्स पे है A, मैं इसकी जगह 50 रख रही हूँ, तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दी। और देखिए इसने A को 50 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ देखिए A था, ये इसकी जगह 50 आ गया, क्योंकि मैंने ये जो लिस्ट मेरी टपल के अंदर थी उस लिस्ट का एक एलिमेंट बदला, तो ठीक है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है और वो वहीं चेंज इन प्लेस कर सकती है। लेकिन अगर मैं इस T2 की जगह पूरी एक नई वैल्यू लाना चाहूँ तो देखिए मुझे एरर आ रही है। यानी कि अगर आपके टपल के अंदर एक लिस्ट प्रेजेंट है तो उस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स तो आप बदल सकते हैं, लेकिन उस पूरी लिस्ट को एक नई वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी टपल के अंदर लिस्ट है तो लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी लिस्ट एक नई वैल्यू से रिप्लेस नहीं हो पाएगी। सो हेयर you can see that I have discussed the difference between tuple and string. जैसे कि मैंने बताया कि टपल और स्ट्रिंग बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन एक ही डिफरेंस होता है कि स्ट्रिंग के अंदर सारे स्ट्रिंग्स ही होते हैं, लेकिन टपल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ टपल विद लिस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि टपल इम्यूटेबल होती है और लिस्ट म्यूटेबल होता है। So this was all about the introductory part of tuples and how this tuple is different with other sequences like string and list. I hope this much must be clear to you in this video. If you have any confusion, you can write it in the comment section. In the later videos, I'll be focusing upon rest of the aspects of tuple data type. So stay tuned. Thank you so much.